Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I thank God for this time that He has granted in our lives. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवनों में ये समय दिया है। I'm also thankful to Team Dauntless Pulpit for giving me this opportunity to share from the Word of God today. और डॉन्टलेस पुलपुट की पूरी टीम का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि प्रभु के वचनों में से मैं आज आपके मध्य में बांट सकूं। As we begin, let us start with the word of prayer. Let us pray. Dear God and loving Heavenly Father, we as your children come into your midst. Lord, we are opening our hearts, opening our minds, and Lord, we want to hear your word. Lord, let your word come true amidst us, amidst our circumstances. And Lord, let it affect and influence our lives. Lord, help us to listen to your still small voice as we meditate upon your word. And Lord, lead us and guide us throughout this session. In Jesus' precious name we pray. Amen. This pandemic COVID-19 has transformed our lives, isn't it? ये जो वैश्विक महामारी कोविड-19 की आई है उसने हमारे जीवनों को पूर्ण रीति से परिवर्तित कर दिया, ऐसा नहीं है क्या? Thus far, we never practiced the concept of work from home, even if sometimes due to restless work, we once might have thought that it's okay not to go for job or आने से पहले हमने कभी भी घर से कार्य नहीं किया रहेगा। हम लोग सोचते थे कि इतना हम मेहनत करते हैं, इतनी हम परिश्रम करते हैं, तो एक आध दिन छुट्टी मिल जाए या फिर घर से काम करने का भी मिल जाए, ऐसा हो तो भी बहुत अच्छा है। हम पहले ये सोचते थे। in academic circle, whereas the on-campus education was so much necessary and required, COVID-19 provoked the use of e-learning. और पूरे शैक्षणिक समुदाय के अंदर भी जहां पर वहां पर जाके पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था, ये कोविड-19 की वजह से अब सब लोग उसमें भी अभी ऑनलाइन लर्निंग के पीछे लगे हैं अभी। Thus far, it was just our home, but now it has been transformed to our workplace, isn't it? अब तक तो हमारे घर तो केवल घर ही थे, परंतु अब कोविड-19 की वजह से अभी हमारे कार्य करने का स्थल भी बन चुके हैं। In short, our life has become as an integrated life. संक्षिप्त में कहे तो हमारे जो जीवन है वो एकीकृत जीवन बन चुके हैं, where we commingle new perspectives to our established ideas. जहां पर हमारे जो स्थित विचार है उनके साथ साथ हम नए नए दृष्टिकोणों को अंदर हम जोड़ते रहते हैं। New sets of emotions are integrated with the traditional setup. और जो पुरातन काल के जो पूरे एक विचारधारा है उसके साथ साथ उसके अंदर हम नई चीजों को जोड़ते हैं। Have you ever thought that Bible also can be perceived with such integration? क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल को भी हम इसी एकीकृतता से हम सोच सकते हैं या फिर विचार सकते हैं? For a moment, what if I ask you, where is the first problem mentioned? For a moment, if I ask you, where is the first math problem described in Bible? यदि मैं आपको पूछूं कि बाइबल के अंदर सबसे पहला गणित का प्रश्न कहाँ पे हमें मिलता है? It is right there in Genesis 1 when God said humankind, go forth and multiply. और ये तो हमें उत्पत्ति 1 में ही पाया जाता है जहां पर परमेश्वर ने कहा मानवों को कि जाओ और बहुगुणित हो। From a sports perspective, what if I ask you who was the first tennis player mentioned in Bible? अगर खेलकूद के दृष्टिकोण से अगर मैं आपको पूछूं कि बाइबल के अंदर सबसे पहला टेनिस का प्लेयर कौन है? He was Joseph because he served in Pharaoh's courts. और ये तो यूसुफ था क्योंकि उसने फारून की कोर्ट्स में सेवकाई की। The term 360-degree view is a popular term which in mathematics refers to a full circle. और ये जो शब्द है कि 360 डिग्री से किसी चीज को देखना, ये तो एक गणित के प्रश्न का एक ऐसा शब्द है। It is also applied to corporate level.
और गणित की भाषा में कहे तो ये पूरा गोलाकार होता है, और उसको सांसारिक जीवन के अंदर भी उसको हम डालते हैं। Addressing to its customers through 360-degree view, you can see every angle of your customer's relationship with your company. जब अपने ग्राहकों के साथ वो बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि 360 डिग्री के इस पूरे एंगल से आप हर एक बाजू से अपने कंपनी के साथ के संबंध को आप देख सकते हैं। There is another well-known term that is 3D, three dimension. और एक और बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसको 3D कहते हैं, मतलब तीन पहलू वाली चीज। Generally, human eye can perceive two dimensions, that is length and height. साधारण तौर पे हमारी जो मानवीय आंखें हैं वो केवल कोई भी चीज को दो पहलू में ही देख सकती है, या तो उसकी ऊंचाई या फिर उसकी लंबाई में ही देख सकती है। But each object has a third dimension, that is depth. और परंतु देखने वाली बात यह है कि हर एक कोई भी वस्तु है, उसका एक तीसरा पहलू भी होता है, और उसकी वो गहराई है। Most of the times we perceive what is just lying ahead of us, and we tend to ignore and neglect the idea of depth. और हम लोग जो है ज्यादातर क्या करते हैं, हमारे सामने जो दिखता है उसको ही बस मान लेते हैं, और उसका जो तीसरा पहलू है, जो गहराई है, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। So today we want to learn the scripture by the integration of mathematics and geometry as we ponder upon Ruth 1. तो आज हम इस गणित और जियोमेट्री की एकीकृतता से में हम लोग रूथ 1 का अभ्यास करना चाहते हैं। Today I want to talk with you on the subject life at 360 degree 3D visualization of characters of Ruth 1. और आज के मनन के लिए मैंने जो शीर्षक पसंद किया वो ये है कि जब हम जीवन को 360 डिग्री से देखने का प्रयत्न करें, और उसमें भी रूथ के पहले अध्याय के अंदर जो 3 चारित्र है उनको हम 3D पहलू से देखना चाहते हैं। Considering the book of Ruth, the characters and their 360 degree view will help us to understand their life situations and movement. और रूथ की पुस्तक को ध्यान में रखते हुए कि पहले अध्याय के अंदर जिन पात्रों का वर्णन किया गया है, उनको यदि हम 360 डिग्री से देखेंगे तो उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं और उनकी जो हलचल है उनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। The three-dimensional view of these characters will help us to explore their responses towards God. और इन सब पात्रों को हम अगर तीन पहलू से देख पाएंगे तो हम उनके जो परमेश्वर के प्रति के जो प्रतिसाद थे उनको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। Before that, let me just take you to the brief background of Book of Ruth. और उसमें जाने से पहले हम रूथ के पुस्तक की पृष्ठभूमि देखना चाहते हैं। According to Talmud tradition, it is believed that the Book of Ruth was written by Samuel. और तालमुद का जो पूरा विचारधारा है उसके अनुसार ये रूथ की पुस्तक को शमूएल के द्वारा लिखा गया था। Ruth's narrative begins with the phrase as mentioned in Ruth 1:1, in the days when the judges ruled. और रूथ की पुस्तक की शुरुआत जैसे कि रूथ 1 और 1 में लिखा गया है, इससे हुई थी कि ये वे दिन की कहानी है जब न्यायाधीश कार्यरत थे। The book of Judges concludes with this note: in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. और ये जो न्यायाधीश की पुस्तक है वो इस बात से खत्म होती है जब लिखा है कि उन दिनों में इजराइल का कोई राजा नहीं था और हर एक व्यक्ति ने अपनी नजर में जो सही था वही किया। Thus we can perceive that this was a time of religious and moral degeneracy, national disunity and frequent foreign oppression. मतलब हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो ये समय था जब धार्मिक और नैतिक रीति से मानवीय बहुत ही गिर चुका था, राष्ट्र में देश में बहुत ही एकता का अभाव था, और उसके साथ साथ विदेशी देशों से बहुत ही दबाव और कुचलाव का वे लोग अनुभव कर रहे थे। In short, it was a time of socio-political anarchy. इसका मतलब तो ये है कि अगर कहे तो ये तो एक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक एक अराजकता का समय था। In such situation, a severe famine strikes a nation. और ऐसी परिस्थिति के अंदर एक बहुत ही भयंकर ऐसा अकाल देश को आता है। Let us examine the life of three main characters from the book of Ruth and
the first chapter of this book. तो आइए हम साथ मिलकर रूत के पहले अध्याय के अंदर जिन 3 मुख्य पात्रों का वहां पर वर्णन किया गया है उनके जीवनों को हम 360 डिग्री से देखने का प्रयत्न करें। First, Elimelech, length of his distance 180 degree. सबसे पहले एलीमेलेक के बारे में देखेंगे और उसकी जो दूरी की लंबाई थी 180 डिग्री। Elimelech is the head of the family. एलीमेलेक एक परिवार का मुख्य था And because of famine, he determines to migrate to the land of Moab. और इस अकाल के कारण उसने ये निर्णय लिया कि अपने परिवार के साथ वो मोआब में चला जाएगा। Was it a correct move to go to a remote place? क्या ये सही निर्णय था उसका, कैसी अलग सी जगह में वो चला जाए? For 2 reasons, Elimelech would not have gone to Moab. और 2 कारणों सहित वो शायद मोआब में न गया होता था। First, Elimelech was a Jew, and the land where he was traveling, that was Moab. सबसे पहली बात, सबसे पहला कारण, एलीमेलेक तो एक यहूदी था और जिस देश में वो जाने का प्रयत्न कर रहा था वो मोआब था। According to Genesis 19:30-38, Moabites were considered as socially disgraceful. और उत्पत्ति के 19वें अध्याय 30 से 38 के अंदर लिखा है कि मोआबी लोग तो सामाजिक रीति से अस्वीकृत थे। Because in Hebrew, the word Moab comes from 2 different words, min plus ab, from the father, meaning descendants from the father. और क्योंकि मोआब जो है वो हिब्रू के अंदर 2 शब्दों से आता है, मिन और आब, मतलब कि पिता के पुत्र। Moreover, according to Deuteronomy 23:4, it was the Lord's command for having. Moreover, according to Deuteronomy 23:4, it was the Lord's command for prohibition to have any relation with the Moabites. और उसके ज्यादा हम देखें, उसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 23 और 4 के अंदर ये परमेश्वर का प्रतिबंध, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि किसी भी मोआबी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखना। Moreover, according to Deuteronomy 23:4, it was the Lord's command for prohibition to have any relation with the Moabites. और उसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 23 और 4 के अनुसार ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि उन्होंने मोआबी लोगों के साथ कोई भी संबंध रखने से प्रतिबंध किया गया था। Second reason. दूसरा कारण, Whereas Elimelech's family shifted to Moab, rest others might have tried to survive through one or other means by staying in the land. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीमेलेक ने तो मोआब जाने का निर्णय ले लिया, परंतु दूसरे सब परिवार तो वहीं पर उसी जमीन पर रहकर खुद अपने आजीविका चलाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। There was another profound reason too. और उसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी था उसके साथ, and that was his name. और वो तो उसका नाम था। The meaning of Elimelech is my God. Eli is king. Melech, my God, is king. और एलीमेलेक शब्द का मतलब है मेरा प्रभु एली, और मेलेक मतलब राजा, मतलब कि मेरा प्रभु राजा है। The name which declares God as his king, but Elimelech's action actually contradicts the name that he bore. और ये एक ऐसा नाम है जो ऐसी घोषणा करता है कि मेरा प्रभु राजा है, परंतु ये जो एलीमेलेक के जो कार्य थे वो उस बात को घोषित नहीं कर रहे थे। Had he truly believed God was his king, he would have stayed in Bethlehem in spite of the prevailing famine, isn't it? और ये अकाल के कारण अगर यदि सचमुच में वो मानता था कि मेरा प्रभु राजा है तो वो तो बेथलेहम में ही रुक जाता था। But in the urgency of this situation, did Elimelech miss something? परंतु क्या इस परिस्थिति की तात्कालीनता में उसने कुछ गुमा दिया? The narrator here does not highlight any of Elimelech's plea which he might have made to God before leaving the country of Bethlehem. और बेथलेहम छोड़ने से पहले ये जो पुस्तक का जो लेखक है उसने एलीमेलेक की कोई भी प्रार्थना को वहां पर नहीं लिखा है। With each step towards Moab, he was actually distancing from God.
और मोआब के ओर जाने के हर एक कदम के साथ साथ वो दरअसल में परमेश्वर से दूर जा रहा था। The distance that he covered from Bethlehem to Moab, this length actually was not just the length between two towns, rather, it was the length between Elimelech and his God. और ये जो बेथलेहम से मोआब जाने का जो ये पूरी दूरी थी, ये केवल दो शहरों के बीच की दूरी नहीं थी, परंतु ये तो एलीमेलेक और प्रभु दोनों के बीच में जो दूरी हो रही थी वो दिखा रही थी। In stepping out of Judah, he actually stepped out of will of God. और यहूदा से बाहर निकलने के साथ साथ वो परमेश्वर की इच्छा से भी बाहर निकल गया तब। Instead, relying on God's provisions like fellow Judahites, Elimelech did not trust God's faithfulness. और परमेश्वर की जो परमेश्वर ने जो प्रावधान हमारे लिए किए थे दूसरे यहूदियों के साथ, उस पर भरोसा ना करते हुए उसने परमेश्वर के प्रति अविश्वास दिखाया और वो वहां से बाहर निकला। Later, we observed in verse 3 to 5 that Elimelech's survival strategy is not much effective because he himself dies in this foreign land of Moab. और उसके बाद 3 से 5 में हम आगे भी पढ़ते हैं पहले अध्याय के ही कि ये जो एलीमेलेक की जो ये पूरी रणनीति थी अपने आप को जिंदा रखने की, वो इतनी सफल नहीं होती क्योंकि वही खुद भी मर जाता है थोड़े ही समय में। Moreover, his two sons marry Moabite women and later they also passes away without giving a heir to family. और यहाँ पर उसके दो बेटे जो थे जिन लोगों ने मोआबी स्त्रियों को अपनी पत्नी किया था, वो लोग भी उनके परिवार को कोई वंशज दिए बिना वो भी मर जाते हैं। Elimelech's movement shows that he was progressing in 180-degree view, that is opposite to the prior. और यहाँ पर एलीमेलेक की जो पूरी हलचल है वो हमें ये दिखाती है कि वो 180 डिग्री के पूरे एंगल से वो आगे बढ़ रहा है, जो मतलब पहले था उससे एकदम विपरीत दिशा में वो जा रहा है। It means that though initially a Jew bearing a good name, but at the end he failed to live according to his name. और इसका मतलब तो ये दिखाता है कि भले एक यहूदी था जो एक बहुत ही अच्छे नाम को धारण किए हुए था, परंतु उसके कार्यों की वजह से वो उस बात में अपने आप को साबित नहीं कर पाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, what is our position today in terms of depending upon the sovereign will of God? ये हमारी परिस्थिति कहाँ पर है जब हमें परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा है उस पर जब निर्भर होना होता है तब। How many times we actually want to undertake a task, but do we really sense that we are actually stepping out of will of God? कितनी ऐसी बार हम लोग किसी कार्य को अपने हाथ पर रखना चाहते हैं, परंतु क्या हम ये समझ पाते हैं कि उस कार्य को करने से हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल रहे हैं? The more priority to the self and less to God actually distances us from God. जब हम अपने आप को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और परमेश्वर को कम देते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। So let us be very careful in our actions and make a firm determination to rely on God no matter what we face in our lives. तो इसीलिए आओ हम साथ मिलकर बहुत ही संभाल कर हमारे कार्यों को करें और एक बहुत ही निष्ठावान हम एक निर्णय ले कि हम हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना आए, परंतु हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। Second character, Naomi, height of her thoughts 270 degree. और उसके बाद दूसरा जो मुख्य पात्र है वो है नाओमी। उसके विचार की जो ऊंचाई थी वो 270 डिग्री थी। Naomi, Elimelech's wife, was left with two Moabite daughters-in-law in this foreign land of Moab. और एलीमेलेक की जो बीवी थी, पत्नी थी नाओमी, वो अब अपनी दो मोआबी बहुओं के साथ उस विदेश मोआब में रह गई थी अभी। While other families might have stayed back in Bethlehem amidst this crisis, it may be that Naomi's request to stay back in Bethlehem might not have been granted due to patriarchal societal setup. और नाओमी के जीवन में हम देखें तो शायद दूसरे जो परिवार थे वो तो बेथलेहम में ही रुक गए थे इस विपरीत परिस्थिति में भी, और नाओमी ने शायद विनंती भी की होगी एलीमेलेक को कि हम यहीं पर रुक जाते हैं, परंतु क्योंकि वो एक पुरुष प्रधान समाज था इसलिए नाओमी की कोई भी विनंती को वहां पर स्वीकारा नहीं गया होगा। Now Naomi's life was actually turned in another direction beyond her plan. और अब जो नाओमी का जीवन था
वो उसकी आयोजन से विपरीत दिशा में अब आगे बढ़ रहा था। She would have felt desolate without her native land. और उसकी जो मूल जमीन है, वो जो मूल देश की वतनी है, नागरिक है, उसका जीवन उसको उसको विदेशी, एक सेकंड, वो विदेशी देश के अंदर उसे एकदम अकेला लगा होगा क्योंकि वो अपने देश से बाहर थी। It may be that in spite of being alone, Naomi would not have forsaken the Lord even in the foreign land and culture. ऐसा भी हो सकता है कि भले ही वो अकेली थी, परंतु फिर भी उस विदेशी देश में और विदेशी समाज के अंदर, संस्कृति के अंदर उसने परमेश्वर को ना छोड़ दिया हो। It may be that in spite of being alone, Naomi would not have forsaken the Lord even in this foreign land and foreign culture. ऐसा भी हो सकता है कि इस विदेशी देश और संस्कृति के अंदर भी परमेश्वर को नाओमी ने छोड़ ना दिया हो। As Naomi hears in verse 6 that the Lord has visited his people and given them food in Bethlehem, now she prepares herself to return where she belongs, as verse 7 mentions. और छठवें पद के अंदर जैसे कि नाओमी सुनती है कि परमेश्वर ने लोगों की मुलाकात ली है और उनको भोजन दिया है बेथलेहम के अंदर, और वो खुद तैयार होती है और वो जहां की थी वहां पर जाने के लिए वो तैयारी करती है, जैसे कि पद 7 में लिखा हुआ है। Now, when Naomi arrives in Bethlehem, Naomi asks the woman not to call her Naomi, instead to call her Mara. अब जब नाओमी बेथलेहम में आ चुकी है, तब वो बेथलेहम की स्त्रियों को कहती है कि तुम मुझे नाओमी मत बुलाओ, परंतु तुम मुझे मारा बुलाओ। Naomi means sweet, pleasant, or my delight, my joy, whereas Mara means bitter. नाओमी का मतलब है मीठा या फिर अच्छा या फिर मेरी खुशी, और मारा मतलब कि कड़वा। The reason for this shift is because she thinks that God is accountable for her crisis. और ये नाम क्यों परिवर्तित करती है, नाम क्यों बदलती है? वो ये मानती है कि उसके साथ उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है। She mentions this in verse 20 and 21. और पद 20 और 21 के अंदर वो इस बात को कहती भी है। It says like this, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi, when the Lord has testified against me, and the Almighty has brought calamity upon me? और 20 और 21 पद में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं पूरी भरी पूरी चली थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? Here, if we observe carefully in above verses, Naomi makes herself subject only once, whereas 4 times she utters that her calamity is because of the Almighty Lord. और यहाँ पर इन दोनों पदों को अगर आप अभ्यास करें तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप के बारे में केवल एक ही बार बोलती है, परंतु 4 बार वो ये बात कहती है कि परमेश्वर की वजह से उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई। I want to highlight something here. मैं आपको यहाँ पे कुछ बात जोर देके कहना चाहता हूँ यहाँ पर। Why there is sudden shift in her thinking? और उसकी सोच में एकदम ऐसा उल्टाव हमें क्यों देखने को मिलता है? Look at the heights she can think about God. आप सोचिए कि कितनी ऊंचाई से वो परमेश्वर के बारे में सोच सकती है। He was the Lord who in his sovereign power actually protected Naomi even when she was in the foreign land. वो तो ऐसा परमेश्वर था जिन्होंने अपनी सर्वोपरि सामर्थ्य में नाओमी को उस विदेशी देश में भी उसको बचाए रखा था। The Lord sustained her stay there and also helped her to return to Bethlehem safely. और परमेश्वर ने उसको वहां पर वो जब जी रही थी तब भी उसे जिलाया, और उसके बाद बहुत ही सही सलामत और सुरक्षित तरीके से बेथलेहम में भी वापस लाया। She herself was actually confident when she was in Moab that the Lord has taken care of his people and given them food. और वो तो अपने आप में ये भी विश्वास रखती थी कि परमेश्वर ने उनके लोगों को उनकी जमीन में देखभाल की है, उनका ख्याल रखा है और उनको भोजन भी दिया है। Wasn't the same God going to take care of Naomi now on?
क्या वही परमेश्वर अब नाओमी का भी ख्याल नहीं रखने वाला था? Why her perception is suddenly changed? तो फिर उसकी ये जो विचारधारा है वो एकदम से ऐसे क्यों उल्टी हो जाती है? Why she needed to blame God here? और यहाँ पर वो अभी परमेश्वर पर दोष क्यों लगा रही है? She would have actually continued to rely firmly, very firmly, on the same goodness and faithfulness of the Lord. और उसने तो दरअसल में बहुत ही दृढ़ रीति से परमेश्वर की उसी भलाई पर अपने आप को निर्भर करना था। That's why Naomi's thoughts can be considered of 270 degree. और इसीलिए नाओमी के विचार जो है उसको हम 270 डिग्री पर ही मान सकते हैं। Though I wish to mention the heights of her thought, actually she was so much pessimistic. और भले ही मैं उसके विचार की ऊंचाई को आपको कितना भी बताना चाहूं, परंतु वो एक रीति से अपने विचारों के अंदर डूब चुकी थी। So 270 degree refers to downward side. और 270 डिग्री जो है वो तो दरअसल में उसको नीचा लेके जाता है। It is because while she was waiting upon the Lord while staying in Moab, but as she returned, she doubted God's provision for herself and blamed God for her situation. वो भले ही परमेश्वर की राह देख रही थी मोआब में रहते हुए, परंतु जब वो वापस आई तब उसने परमेश्वर की जो प्रावधान है उन पर शंका की और परमेश्वर को उसकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराया। My dear friends, are we also turning to God but with a murmuring heart? मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम भी परमेश्वर के प्रति अपने इस कचकच वाले हृदय को लेके हम फिरते हैं? Hasn't God been faithful in all our situations? क्या परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों में विश्वासु नहीं ठहरा है? Are we still behaving like Naomi? We are also turning to God, but then we doubt God's provision. क्या हम भी नाओमी की प्रति हम प्रतिसाद दे रहे हैं? परमेश्वर की तरफ जाते तो है, मुड़ते तो है, परंतु परमेश्वर को हर एक समय दोष देते रहते हैं हम। Even if we enjoy good moments in our lives, it is our tendency to blame God. हम हमारे जीवन में अच्छे क्षणों को भी जब भी मनाए तब भी हमारी हमेशा ये मनोकामना रहती है कि हम परमेश्वर को दोष दे हर एक चीज के लिए। Let me tell you very clearly, God is very much displeased when we offer him murmuring. और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रीति से एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, तब परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Instead of praise and gratitude, we are fallen short to offer him of what he deserves. और स्तुति और आभारीपन दिखाने के विपरीत हम तो उनको जो लायक है जिसके परमेश्वर, उसको भी हम उनको नहीं दे पाते हैं। Dear friends, let our heart never offer grumbling and murmuring, but thankfulness and praise, believing that God will work out everything for our good, as Romans 8:28 mentions. जैसे कि रूमी 8 और 28 में लिखा है, उसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, हम भी हमारे परमेश्वर को कुड़कुड़ाहट भरा हृदय हम अर्पित ना करें, परंतु उसके विपरीत हम उपकार स्तुति आराधना वाले अर्पण हम परमेश्वर को चलाए। हम विश्वास रखें कि परमेश्वर अंततः हमारे जीवनों में सब भला करेगा। Third character, Ruth, width of allegiance 360 degree. और तीसरा जो मुख्य पात्र है वो है रूथ, जिसकी जो निष्ठा की जो चौड़ाई है वो 360 डिग्री है। This third character is very much different from previous two. और ये जो तीसरा पात्र है वो आगे हमने जो देखे दो पात्र उनसे एकदम अलग है। Whereas the previous two were Jews, Ruth was following other gods. और पहले जो दो पात्रों को हमने देखा था वे तो दरअसल में यहूदी थे, परंतु रूथ तो एक विदेशी परमेश्वर की आराधना करने वाली थी। Whereas the previous two were Jews, Ruth was a foreigner, the Moabite. और पहले वाले जो दो थे वो तो यहूदी थे, परंतु रूथ तो एक विदेशी थी, एक मोआबी थी। Whereas the previous two knew Yahweh, Ruth was following other gods. और पहले दो तो यहोवा को जानते थे, परंतु रूथ तो दूसरे परमेश्वरों के पीछे जाती थी। Whereas the previous two seemed to be disconnecting from God, here Ruth is seemed to be connecting to God. और पहले दो जो पात्र थे वो दरअसल में परमेश्वर से अलग हो रहे थे, परंतु रूथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से जुड़ रही है। Ruth is a significant character because verse 14 mentions she clung to Naomi.
और रूथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि 14वें पद के अंदर लिखा है कि रूथ नाओमी को चिपके रही। While returning to Bethlehem, Naomi insisted both of her daughters-in-law to return to the land of Moab, to go to their homeland. और बेथलेहम वापस आते समय नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को बहुत जोर देके कहा कि तुम तुम्हारे देश मतलब मोआब में तुम वापस चली जाओ। Whereas Orpah, after much denial, she agreed to return. और उसके सामने हम जो देखते हैं कि उसकी जो दूसरी बहू थी ओरपा, उसने काफी मना करने के बाद वो अंततः मान गई और वापस चली गई। Ruth actually firmly determined to stay with Naomi. परंतु रूथ ने तो बहुत ही निष्ठा से निर्णय ले लिया था कि वो तो नाओमी के साथ ही रहेगी। That's why her depth of allegiance can be seen in verse 16 and 17. और इसीलिए उसकी ये जो निष्ठा की जो चौड़ाई है वो हम 16 और 17 पद में देख पाते हैं। It says like this: Do not urge me to leave you or to return from following you. For if where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. और 16 और 17 पद में इस प्रकार लिखा है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। How can it be that a foreigner is addressing God so personally? ये कैसे हो सकता है कि एक विदेशी व्यक्ति परमेश्वर को इतनी व्यक्तिगतता से बुलाता है? Ruth's commitment to Yahweh is not just to worship God Yahweh as mere another God, rather to entrust herself completely to this God. और यहाँ पर रूथ का जो समर्पण है परमेश्वर यहोवा के यहोवा के प्रति, वो ऐसा नहीं है कि किसी और परमेश्वर के साथ साथ वो यहोवा को भी आराधना कर लेगी, परंतु यहाँ पर तो वो संपूर्ण रीति से अपने आप को केवल और केवल यहोवा को अर्पित करती। Her deep sense of belonging was not just for the time she is alive, rather beyond that she is also willing to be buried with Naomi and not in her homeland Moab. और ये जो पकड़े रहने की जो उसकी भावना थी, वो केवल वो जीवित थी तब तक नहीं थी, परंतु वो जब मरे तब भी वो ये चाहती थी कि वो नाओमी के देश में उसी जमीन में उसे मिट्टी दी जाए, मोआब में नहीं, उसके देश में नहीं। In ancient West Asian contexts, burial in one's ancestral land was extremely important. और पुरातन काल का जो पश्चिमी एशिया का पूरा संस्कृति था, उसके अंदर अपने पूर्वजों के जमीन में अगर किसी व्यक्ति को गाड़ा जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। By insisting that she will be buried with Naomi, Ruth is further distancing herself from foreign homeland, foreign culture. और यहाँ पर जब वो इस बात पर जोर दे रही है कि उसे मरने के बाद भी नाओमी के साथ ही गाड़ा जाए, तब वो दरअसल में अपने आप को उस विदेश से, उस विदेशी संस्कृति से वो दूर कर रही है, अलग कर रही है अभी। Later, we observed that it was her deep, profound commitment that led a foreigner to be a part of God's community. और आगे जाके हम ये देखते हैं कि ये तो उसकी दृढ़ निष्ठा और समर्पण था, जिससे कि एक विदेशी व्यक्ति भी अब परमेश्वर के समुदाय का एक भाग बन चुकी थी। Through her acts of kindness, she brought blessings not just for herself, but also redeemed Naomi. और उसकी जो भलाई के कार्य थे, उसके कारण वो अपने अपने जीवन में केवल आशीर्वाद नहीं लाई, परंतु उसने तो नाओमी को भी छुटकारा दिया। Ruth's 360-degree view reveals that initially a foreigner, still she entrusted to God completely. और रूथ का ये जो 360 डिग्री का ये जो पूरा निष्ठा था, वो ये बताता है कि भले ही वो शुरुआत में एक विदेशी थी, परंतु उसने अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा का कर दिया था। Initially away from God, but now
in God's fold, and she was able to reap the blessings to the extent that she became the great grandmother of our Lord and Savior Jesus Christ. पहले भले ही परमेश्वर से दूर थी, अलग थी, परंतु वो आगे जाके उसकी निष्ठा के कारण इतनी परमेश्वर से जुड़ गई कि उसे ये भी एक मौका मिला, ये भी एक अवसर मिला कि वो यीशु मसीह की एक पूर्वज बन पाई। My fellow brothers and sisters in Christ, are we alienating from the things that are not meant for us? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम उन चीजों से अलग हो पा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं रखी गई है? This world offers us lots of options and opinions. और ये जो पूरी दुनिया है, ये तो हमें अलग अलग प्रकार के विकल्प और अलग अलग प्रकार की पसंदगियां हमारे सामने रखती है, That it may lead us away from God. कि वो चीज पसंद करने से हम परमेश्वर से दूर चले जाए। Offers us lots of choices that may please us but dishonor our God. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी हमारी पसंदगियों से हमें खुद को तो खुशी मिले, परंतु उसको हम चुनने से परमेश्वर का अपमान करें। The world is in constant effort to pull us away from God. ये संसार अपनी पूरा परिश्रम कर रहा है कि हमें वो परमेश्वर से दूर कर दे, अलग कर दे, To detach ourselves from the faith that we have in our Lord. और हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, उससे हमें वो अलग करना चाहता है। Now, if a foreigner can commit to abide by God, why can't we as children of God determine to follow God continually? अभी यदि एक विदेशी व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित अपने जीवन को कर सकती है, तो हम जो परमेश्वर के संतान हैं, क्या हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हम परमेश्वर के पीछे बने, हम परमेश्वर के अनुयायी बने? The deep sense of Ruth's allegiance to Yahweh challenges us to forsake the world and be deep rooted in Christ Jesus. और यहाँ पर ये जो रूथ की निष्ठा की जो गहराई थी, ये हमें ये इस प्रकार का चुनौती देती है कि हम भी इस संसार को छोड़कर अपने विश्वास को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह में गहरा हम डालें। In conclusion, this 360-degree view is very much relevant to our lives. और आखिरी के कुछ शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि ये 360 डिग्री का ये जो पूरी दृष्टि है, वो हमारे जीवनों में भी इतनी ही लागू पड़ती है। We have experienced different kind of situation in our journey thus far. हमने हमारे जीवन की यात्रा में अनेक प्रकार के ऐसे अनुभवों को हमारे जीवन में भी जिया है। Amidst our movement, what has been our response to God? और हमारे जीवन की हलचल में हमने परमेश्वर को किस प्रकार का प्रतिसाद दिया है? In what degree we are actually moving ahead? हम कौन सी डिग्री से हमारे जीवनों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं? Is it 180 degree, that is totally opposite? Is it 270 degree, sometimes downwards? Or is it 360 degree, a life of transformation? क्या ये 180 डिग्री है, मतलब कि परमेश्वर से पूर्ण रीति से विपरीत जाना? क्या ये 270 है कि जो कभी कभी नीचे जाती है? या फिर क्या ये 360 है, मतलब एक पूर्ण परिवर्तित जीवन की बात? Where am I standing? 180 degree, 270 degree, or at 360 degree? मैं अपने जीवन में कहां पर हूं? 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, या 360 पर? Have we trusted God with a deep sense of allegiance, or have we distanced from God? क्या पूर्ण रीति से एक निष्ठा के साथ हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, या फिर क्या हमने परमेश्वर से अपने आप को दूर कर दिया है? Are we also not elevating our thoughts sometimes and try to eradicate God's better plan for us? क्या हम भी काफी बार अपने विचारों को ऊपर रखते हुए परमेश्वर के जो आयोजन है हमारे जीवन को, उनको नष्ट नहीं कर रहे हैं? That's why this 360 degree view and 3D dimension view will help us to ponder on our lives and challenges us to self-examine. और इसीलिए ये जो 360 डिग्री का जो पूरी दृष्टि है और 3D तरीके से, तीन पहलू से हम जब ये देख रहे हैं, तब हमें ये चुनौती देती है कि हम हमारे जीवनों के प्रति आत्म मूल्यांकन करें कि हम कहां पर कम पड़ रहे हैं। No matter what we face, never increase the gap between ourselves and God. भले ही हम हमारे जीवन में किसी भी चीज का सामना क्यों ना करें, परंतु अपने आप और परमेश्वर के बीच की दूरी को कभी ना बढ़ाएं।
Come what may, let us never escalate our own thoughts and replace it with God's better and best plan for us. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आइए हम अपने विचारों को परमेश्वर की हमारे जीवन की जो योजना है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसके ऊपर कभी ना रखें। No matter where we are, who we are, let us draw near to God with a deep sense of profound commitment. भले ही हम कहीं पर भी हो और हम भले ही हम कोई भी क्यों ना हो, परंतु आइए हम साथ मिलकर परमेश्वर से नजदीक जाए और एक प्रकार की दृढ़ निष्ठा से परमेश्वर के प्रति जाए हम। May God bless us all through this word. Amen. परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। Let, let us close this session with the word of prayer and benediction. Let us pray. Our loving God, our Heavenly Father, we are thankful to you for this word that has come to us in a perfect and proper way. Lord, we are thankful to you for your word that speaks to us even today, your Holy Spirit that helps us, that inspires us to understand, to listen, and to apply this word in our lives. And Lord, at this moment of time, in relation to your word, Lord, we want to analyze and introspect where we are standing in this with regards to the moment of our lives. Lord, we acknowledge, we admit that we are fallen short to offer praise and gratitude many times. Lord, our tendency is to blame you most of the times. Lord, whenever something bad strikes us, Lord, we tend to blame you. We tend to doubt on your provision. Lord, we want to say sorry. We we are we are apologizing for all those moments where we actually try to put you down. Lord, forgive us. Forgive us, O Lord. And Lord, as this word has come very much clearly to us, Lord, we pray that this word would work in our lives, that would give us the heart of transformation, just as Ruth had. Lord, help us to live a life of transformation, Lord, that would just show your love to our neighbors also, Father. Lord, help us to self-examine continually wherever we are lacking, and Lord, help us to follow continually, no matter what we may face, and no matter where we are standing. Lord, we are sure that whenever we will come back to you, whenever we will return to you, you will be always there to accept us, to embrace us. And that's why we just want to commit our whole life, our movement, our situation in your hands. Lord, direct us, guide us, and lead us. Thank you, Lord, for this beautiful word. And Lord, thank you, Lord, for speaking to us through this word. In the name of Jesus Christ, we offer this prayer. Amen. Let us receive this benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and sweet and pleasant communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen.